Hello everyone, welcome to Panda Power Education. Students, in the previous class, we already discussed about the fundamental concept of optics. So, already discussed laws of reflection, so many terms regarding optics. In this class, we discuss spherical mirror. Spherical mirror. So, spherical mirror कहाँ कहला? देखो definition दिस the mirror whose reflecting surface is curved. The mirror whose reflecting surface is curved, then it is called spherical mirror. तमे जानि छ प्लेन मिरर रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो पूरा स्ट्रेट प्लेन एटा कोन प्लेन पूरा अछि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता जदी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ता कर्व हे गला देन ताको कहबा कोन स्फेरिकल मिरर कर्व जदी हे गला देन ताको कहबा कोन स्फेरिकल मिरर. So there are two type of spherical mirror. There are two types of mirror, spherical mirror. Two types. One is तो जानी थी वो पढ़ी थी वो 10th क्लास रे कॉनकेव मिरर आ गोटे कन्वेक्स मिरर गोटे कॉनकेव मिरर आ गोटे कन्वेक्स मिरर बुझियो. तो बे कॉनकेव मिरर को कहा कोई also it is called converging mirror and this is also called diverging mirror. कहीं की converging mirror कहीं diverging mirror कहबा ताको भी कहबी किंतु फास्ट हमें जानिया पड़िबो concave mirror देखियो केमतिया बुझिला. तो concave mirror its reflecting surface, write down its reflecting surface curved inwards. The spherical mirror whose reflecting surface is inward, that type of mirror is known as concave mirror. एठे हम कॉल करिया convex mirror, its reflecting surface curved outward. Those mirror having reflecting surface curved outward, that type of mirror is known as convex mirror. So diagram करो, diagram रे जानिया केमति देखो. So देखो एठी मु reflecting surface टा को एटा कोटिंग कर देली मिरर टा को कोटिंग कर देली. कोटिंग कला पर ए पट्टा कोन ता रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस टा देखो कर्व हे जी कोन को इनवर्ड को कर्व हे भितरु कर्व हे. तो सेही टाइप रो मिरर देखले त को कहबो ना कॉनकेव mirror. But a type of convex mirror क्या कहबा the reflecting surface curved the reflecting surface is curved outward देखो एपटटा ता रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो एठी कोनोसी रे इंसिडेंट हो तो देखो एटा कर्व हेज कोडे आउटवर्ड बाहर को कर्व हेज एटा भीतर को कर्व हेज जोटा भीतर को कर्व हेज इनवर्ड को कर्व हेज ताको कॉनकेव मिरर जोटा बाहर को कर्व हेज आउटवर्ड को कर्व हेज ताको कहबा कन्वेक्स मिरर बुझियला. तापर जिबा कॉनकेव मिरर टर्म ऊपर जानिबा राइट डाउन एबे कॉनकेव मिरर ऊपर स्टडी करबा तापर कन्वेक्स मिरर बुझिला. राइट डाउन कॉनकेव मिरर हेडिंग कर कॉनकेव मिरर फिगर ड्रा करछि क्लियरली फिगर देखो ठीक है. देखो कॉनकेव मिरर एटा देखो गोटे स्फेरिकल मिरर रू कट हेछि एमति स्फेरिकल मिरर थाए तो मु कट कर देले पेज रू पीस कट करके मते कॉनकेव मिरर मु बनेली बुझ परछ. ताको इनवर्ड देखो एपट इनवर्ड करया हेछि आ आउटसाइड टा को करछु कोटिंग कर देछि. ए जो पार्ट टा म आनिबी स्फेरिकल मिरर रो पार्ट टा कट करके आनिबी से पार्ट टा को कोन कहबी एमएन इज कॉल्ड अपर्चर बुझियला. द ये कट पीस टा आनिबी कट पीस रो मिड पॉइंट को मु कोन कहबी ना पोल मिड पॉइंट टा को कहबी कोन ना पोल पी फॉर पोल बुझि परछ ना नै. ए जो स्फेरिकल मिरर रो सेंटर गोटे पॉइंट थिबो बुझि परछ ना नै. ए सेंटर पॉइंट टा को कहबी सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर बुझि परछ ना नै. तो एबे मोडे
straight line draw करबी which is passes through center of curvature and pole, that is called principal axis. A straight line which is passes through center of curvature and pole, this is called, this is xy, we take xy is called principal axis. Principal axis, बुझी पाइल ना? Principal axis, it is a straight line which is passes through center of curvature and pole, बुझी पारछ? Now a point which is middle point between center of curvature and pole is known as F. That F is known as focus. That F is known as focus. F is the focus, is the point which is placed in principal axis. That if any ray is parallel to the principal axis, then it is reflected back towards the focal point, and so many rays are converging to the point. That point is known as focusing point or focus. बुझी पाइल? So it definition pole level लिखो, it is the midpoint of the aperture. Then center C, it is the center point of the spherical mirror. Then xy principal axis, it is the straight line passes through center of curvature and pole. Then focus, it is the point lies in a principal axis when so many parallel line going to or incident to the spherical mirror, then it is reflected back a point. That point is known as focus, or converging the point, that converging point is known as focus. So ebe A through C to P distance between C to P is known as capital R. This is called radius of curvature. This is called radius of curvature. बुझी पारछ? Radius of curvature is the radius of a sphere. Sphere ର radius जहाँ, এটা radius of curvature है. It is the distance between pole to center of curvature is known as R, or radius of curvature. Now I'll make another distance which is f, small f, is called focal length. Small h is called focal length. It is the distance between pole to focus. The distance between pole to focus is known as focal length. बुझी पालो? Those are the term regarding concave mirror. बुझी पाउछ? तो डेफिनेशन गुडा जहा जहा कहली लिखि परियो. तो एबे आमे किछि रूल पढ़िबा जोटा कि आमे आराम से रे डायग्राम किछि इमेज फॉर्म करबा पई मते इजी हबो. तो जो रूल पढ़िबी, रूल करबी, आराम से रूल को देखो केमिति से रूल को अप्लाई करिवो. जेते वाला डेरिवेशन करबा, कोनसी जिंस करबा के फिगर ड्रा करबी, तो से रूल तुमको बहुत सारे यूज हबो. तो एबे रूल पढ़िबा. रूल राइट डाउन, लिखोछि राइट डाउन. रूल फॉर मेकिंग ray diagram of concave mirror, राइट डाउन. कौन रूल चारटा रूल अछि. गोटे रूल कहबी. रूल नंबर 1 राइट डाउन. रूल नंबर 1 राइट डाउन. A ray parallel to the principal axis will pass a ray, write down, a ray parallel to the principal axis will pass, a ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection, through the focus after reflection. very important point. रूल नंबर 1. तो मोर डायग्रामेटिकली जिनसटा बुझेबी कोन कहला देखो. कहा भाई कॉनकेव मिरर पे मोर कॉनकेव मिरर करछु. এটা কোন प्रिंसिपल एक्सिस x y, this is pole p, this is center of curvature c, this is f for focus. बुझी पाइल? एटा हेला कोन कॉनकेव मिरर. से कोन कहला रे जे पैरेलल करी प्रिंसिपल एक्सिस की रे पैरेलल करी इंसिडेंट करी. देखो प्रिंसिपल एक्सिस को रे इंसिडेंट करछि. देन से कोन करबो ऑलवेज पास थ्रू द, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस की कोनोसी भी रे पैरेलल हेकी गला आ इंसिडेंट कला मिरर ऊपर से कोआड से रिफ्लेक्ट करिवो कोआड को से ऑलवेज पास थ्रू द फोकस. बुझी परछ? यार रिफ्लेक्ट करिवो.
देखिबो जते बेले भी कोनोसी भी पैरेलल करी प्रिंसिपल एक्सिस जाउची ऑलवेज ताको जेते रिफ्लेक्टिंग करबो तारे ताको सदाळे फोकस आड़ आनिबो जेमति कि मु एठी नेबी सब गुडा पैरेलल ले सब गुडा कोन जुबो सब गुडा को जाई फोकस रे कन्वर्जिंग हबो देखो एरे इंसिडेंट हला एठी आसी फोकस रे कन्वर्जिंग हला एरे इंसिडेंट हला फोकस रे कोन हबो कन्वर्जिंग हबो सेथि लागि तो मोडा कहली कॉनकेव मिरर इज आल्सो ए कन्वर्जिंग मिरर काहे कि ना सब एक जति पैरेलल रे सब गुडा को देख फोकस रे कन्वर्जिंग हो गोटे पॉइंट बुझि परछ तो जेति मन रखियो रूल नंबर 1 कोन ना प्रिंसिपल एक्सिस सहित जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल हे कि गला से सबले रिफ्लेक्टेड हो कोन फोकस आड़ को फोकस देखि पास करियो बुझिला दिस इज द रूल नंबर 1 लिबो जी ड्रा कर दियो नेक्स्ट रूल नंबर 2 राइट डाउन रूल नंबर 2 a ray incident through focus a ray incidents through focus a ray incident through focus after reflection after reflection after reflection after reflection it will pass to the it will pass parallel to principal axis it will pass parallel to principal axis right the array incident through focus after reflection it will pass parallel to the principal axis this is the rule number 2 draw करो figure draw करो फर्स्ट कॉनकेव मिरर कर दियो तापरे प्रिंसिपल एक्सिस पोल this is center of curvature this is focus now is giving the rule a ray incident through focus जे कोनस भी रे तो फोकस देख जदी इंसिडेंट करेलो फोकस तो देख मु इंसिडेंट करे देखो एटा फोकस देख जाई छी इंसिडेंट करे छी जे ताले से कोड पास करिवो इट विल पास टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द एटा रिफ्लेक्ट करो रिफ्लेक्ट किन करिवो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कर रिफ्लेक्ट करो जेमि कि एबला रेटम करी एटा एमि पैरेलल कर मन कर एबला इंसिडेंट हला एबे एक रेटा कोन हो रिफ्लेक्ट करिवो ये पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो बुझि परछ ना तो एभला ए तारा सेकंड कंडीशन जदी कोनोसी रे इंसिडेंट हला फोकस देकी देन ता रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हे कि बाहरिबो कोडे प्रिंसिपल एक्सिस सहित पैरेलल हे कि बाहरिबो दिस इज द रूल नंबर 2 नेक्स्ट रूल नंबर 3 rule number 3 write down a ray passes through center of curvature a ray passes through center of curvature a ray passes through center of curvature is reflected back in same path is reflected back in same path कौन कहला देखिबा फिगर ड्रा करो this is the concave mirror this one is the principal axis this is pole this is center of curvature this is focus okay so it is given that a ray passes through center of curvature मोदी गोटे कोनस रे इंसिडेंट करिवि कोन center of curvature देखिबो इंसिडेंट करिवि देन कोन कहला से रिफ्लेक्टेड करिवो कोन सेम पाथ रे बैक देख रिफ्लेक्ट करिवो ताले ऑपोजिट पाथ रे जीवो सही पाथ रे जीवो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करिवो दैट इज द लॉ दैट इज द रूल सो जदी कोनोसी भी इंसिडेंट रे देखला सेंटर ऑफ कर्वेचर देख पास करछि तो सेम पाथ रे से कोनेबो रिटर्न करिवो जेमिति कि एग्जांपल दोछि और प्लेन मिरर अछि ता माने एटा एबे नॉर्मल भरे काम दो प्लेन मिरर रे एटा पॉइंट तो जदी एमटी इंसिडेंट करिवि रे एटा से ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लेन मिरर एमटी अछि एमटी लाइट को पकेली ऑब्वियसली तर ऑपोजिट डायरेक्शन जीवन याड रिप्लेस करिवो सीधा 90 डिग्री पके एक्जेक्टली इन द सेम वे स्फीयर रे सेंटर देखि जे कोनोसी मो टेंजेंट का एटा को 90 डिग्री ना नाही एमजे जब पके 90 डिग्री ना नाही सो एक्जेक्टली इन द सेम वे जदि मो पके तार से कोन हो रिफ्लेक्ट करिवो तले सही सेम पाथ देख रिफ्लेक्ट करिवो ना तो सेंटर देखि जाबे पड़े एटा नॉर्मल हो रे भाबिवो नॉर्मल बोली जानि त एटा को नॉर्मल ए पॉइंट रो नॉर्मल अछि सेथि लागि कोन होछि रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होछि सेम पाथ रे बुझि परछो सो दैट इज द रूल नंबर 3 next rule number 4 write down a ray
incident on pole is reflected ray incident on pole is reflected making equal angle making equal angle बुझी पाछ मेकिंग इक्वल एंगल सो देखो एठी मु ड्रा करछि डायग्राम दिस इज वन इज द कॉन्केव मिरर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज पोल दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस वन इज द फोकस बुझिला से कहला रे जदि पोल को मु इंसिडेंट हला एटा पोल अछि बुझी पाछ तो मु एठी इंसिडेंट करैली इंसिडेंट माने पर एंगल करछि केते थीटा प्रिंसिपल एक्सिस रे एंगल करछि केते थीटा ताल से इक्वल एंगल जेतो रिफ्लेक्टेड करिवो सेही एंगल ले से सेम एंगल ले कोन करिवो रिफ्लेक्टेड कर माने 60 डिग्री एंगल इंसिडेंट हला पोल ले 60 डिग्री रे रिफ्लेक्ट करिवो 30 डिग्री इंसिडेंट हला पोल ले 30 डिग्री रे रिफ्लेक्टेड करिवो जदि पोल ऊपर इंसिडेंट बुझी पोल ऊपर जेतिक एंगल करथिवो सेतिक एंगल रे रिफ्लेक्टेड दिस इज द रूल नंबर ओके सो ए चैप्टर रूल तमे बुझिलो एबे आराम से तमे कोन करि परिवो रे डायग्राम रे जेते भी डेरिवेशन आसीबो सब बुझि परिवो आराम से बुझिला तो एबे हमें जीवा कॉन्केव मिरर रे बा कन्वेक्स मिरर जो भी हो तमे फोकस मन रखिबो मु कहि छी रिलेशन बिटवीन हमें जीवा रिलेशन बिटवीन राइट डाउन रिलेशन बिटवीन r and a r means radius of curvature and focal length तमे 10th क्लास रे पढिथिबो r is equal to 2f r is equal to 2 तो मु तमके डिराइव करि कि देखिबी कोन करबी डेरिवेशन करि केमिति r is equal to 2f ला radius of curvature is equal to 2 types of focal length how सो देखो हम कॉन्केव मिरर नउची कन्वेक्स मिरर रे भी डेरिवेशन करि हो करि परिबा कन्वेक्स मिरर पढाई सला पर हम करबी बट कॉन्केव मिरर ऑलरेडी करे डायग्राम कहि सेलेनी सो कॉन्केव मिरर रे डेरिवेशन करूची देखो एटा ला कॉन्केव मिरर नै गली देखो दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस को नै गली ओके दिस वन इज द सेंटर दिस वन इज द फोकस दिस वन इज द पोल बुझियाला क्लियर और नॉट मु गोटे लाइट इंसिडेंट करबी लाइट ता माने इनफाइनाइट रु आछि इनफाइनाइट डिस्टेंस रु आछि तामे मु पैरेलली माने कर सपोज द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इफ एनी लाइन कमिंग एन इंसिडेंट parallel to the principal axis then it will reflected back in focus point रे कोन हो रिफ्लेक्टेड हो एमते होला नै तो माने कर से पॉइंट रे कोठी इंसिडेंट करे एम पॉइंट रे इंसिडेंट करे बुझी पाइलो क्लियर तो एबे मु तुमको जब कहिबी कोन नॉर्मल ड्रा करबा को सेंटर रु एम को त मु नॉर्मल एउठती ड्रा करि परिबि ना एटा नॉर्मल हे परिबो ना मु सेंटर रु नॉर्मल ड्रा करि परिबिनी सेंटर रु नॉर्मल ड्रा ना ऊपर ड्रा करियो कोन सो पॉइंट को कभी 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट को नॉर्मल ड्रा करे 90 डिग्री तो नॉर्मल लो ऑलवेज एंगल मेकिंग करे के इंसिडेंट रे मन करे एंगल करछि केते थीटा एंगल एठी केते एंगल कला थीटा यदि एठी थीटा एंगल कला तापर एठी भी थीटा करबो ना नहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहिछि इंसिडेंट एंगल जेति की हबो नॉर्मल सहित इंसिडेंट एंगल एटा कोन आई एंगल इज इक्वल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पड़तले आई एंगल इज इक्वल टू आर एंगल दैट मींस angle between incident ray and normal is equal to angle between reflected ray and normal एटा angle between incident ray और normal भीतर angle केते थीटा सेम angle between normal to reflected ray केते हो थीटा हो बुझी पालो ना नहीं क्लियर सो एबे जदी एटा थीटा हैला एटा भी थीटा हो ना नहीं काई अल्टरनेट एंगल देखो पैरेलल अछि एमती पढी दिबो 10th क्लास रे तो एटा यदि थीटा हैला एटा भी थीटा हो ना नहीं सो एक्जेक्टली इन द सेम वे हियर इट इज आल्सो थीटा इट इज आल्सो थीटा दिस वन क्लियर आर नॉट देखो ए दीटा बेसी थीटा प्लस थीटा केते 2 थीटा तो एटा भी 2 थीटा हो काई से अल्टरनेट एंगल ये भी 2 थीटा ये भी 2 थीटा कारण पैरेलल अछन देखो आई लाइन ता क्रॉस सेक्शन क्रॉस कर जाई सो दिस इज ऑल 2 थीटा एंड 2 थीटा बुझी पार नेक्स्ट व्हाट परपेंडिकुलर लाइन फॉर ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड n दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड m सो देखो n टू p डिस्टेंस वेरी लेस बुझ परछ ना नहीं तो एठी मु आज्यूम करे भी आवश्यक नहीं मु कहि परिबी c n is nearly equal to c to n distance is nearly equal to c to p हबो ना नहीं वेरी लेस हेतिबारु मु c को n जेति कि नेबी c को p सेति कि नै परिबी 1000.001 कोन सेम वाला टाइप बुझ परछ ना एग्जैक्टली इन द सेम वे if n डिस्टेंस काइंड ऑफ ए जो अपर्चरटा बहुत छोटो तो छोटो हे तर डिस्टेंस बहुत कमी जो नाही तर fn इज वेरी नियर इक्वल टू fp करि परिबना नाही बुझी परछ क्लियर तो एबे तमे लेखो इन ट्रायंगल mcn
देखो इन ट्रायंगल MCN गोटे राइट एंगल देखौची 90 समकोण त्रिभुज MCN तो एठी tan थीटा मते केते कहि परिबो tan थीटा कोन फार्मूला हमर ट्रिगोनोमेट्री रे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस tan थीटा ऑपोजिट एठी के MCN ट्रायंगल ऑपोजिट हैला थीटा रो ऑपोजिट M बेस के CN खाली tan थीटा कोन हो ऑपोजिट बाय बेस P बाय B पड़ी दिबो MN डिवाइडेड बाय CN हमारा नहीं क्लियर MCN triangle MN divided by CN is equal to tan theta. Now I can write MN divided by CN how much? CP. This is equation 1. Clear or not? Now in triangle MFN tan 2 theta how much? Tan 2 theta. Write down. Tan theta opposite divided by base. Now I can write MN divided by FN. So MN divided by Fn how much? FP. This is equation number 2. बुझी पाइलो पिले? Now I can divide equation 1 by equation 2. Divide equation 1 and equation 2. We divide कर दिया. We get tan theta divided by tan 2 theta is equal to mn by cp divided by mn by fp. बुझियला तो देखो एई केस जत्ति के भी तुम ऑप्टिक्स से पढिबो नॉर्मली जेहेतु ऑब्जेक्ट ता बहुत छोट छोट अछि तो tan थीटा को थीटा नै परिबो और tan 2 थीटा को प्राय तो सब 2 थीटा नै परिबो एबा हिसाब रे नै परिबो काहे ना ऑप्टिक्स छोट बहुत ऑब्जेक्ट ता छोट साइज हेतु ताय नियरली आसीबो तारे म एबे लिखि परबी tan थीटा यार केते थीटा बाय 2 थीटा इज इक्वल टू mn कैंसिल एटा fp ऊपर पळेबो ताले fp डिवाइडेड बाय cp म लिखि परबी ना नाही थीटा थीटा कैंसिल ताले एटी कोन हला 1/2 इज इक्वल टू fp डिवाइडेड बाय cp एटी देखो f to p डिस्टेंस कोन दिस इज फोकल लेंथ f then c to p distance is the radius of curvature so I can write instead of fp I can write f small f that is the focal length instead of cp I can write radius of curvature r now I cross multiply this one is 1 into r is equal to 2 into f 2f. Okay, this is proof. R is equal to 2. Clear or not? So this one is the very important formula. R is equal to 2. Radius of curvature is equal to 2 into 2 times of focal length. So this is the derivation. Okay, but next class we'll see the nature of image of concave mirror. Image ro nature कोन को बहुत सारा अछि कंडीशन 6 टा केस अछि हम पढिबा बुझिला इमेज रो नेचर कोन हबो concave mirror रे बुझिला क्लियर थैंक यू.